I've spent full 3 years in the college now, and this is my 4th year. I wish there were some things that I could have told little Ananta, who was entering college before 4 years. None of the things that I speak in this video are nonsense. Some things are truly scary, but if you are a fresher, trust me, you need to hear these. College जाकर you experience a different world altogether. I just want to stop talking about doing good in law school and academics and throw some light upon the toxicity of college life and maybe the life ahead. This is about people. This is about how disgustful things can be. When we enter college or when we think about college, हमें 3 Idiots वाली यारियाँ और ये जवानी है दीवानी वाली यारियाँ ही याद आती हैं. करण जौहर की फिल्मों वाली कॉलेज एक्टिविटीज़ याद आती हैं. But it is not so. Not at all. So, let's start by talking about the thing that seems to be the best part of college life, friendships. In the first year of college, you will have a different set of people who are going to be your friends. In the next year, they may change. And in the further coming years, they may change again. When I was in the first year of my college, we had a group of 6 people. It did not take time to break away. Then in the next year, I had 1 or 2 people as my friends. We became very close. और उस कारण I cut off other people who I knew, who I could have talked to. Then things did not work out. We stopped talking to each other. At that point of time, I was left with no one. उस टाइम पे मेरे साथ I had that close friend. But then after it, I literally had no one. Then in the next semester, I met 2 more idiots. Then अगला सेमेस्टर मेरा उनके साथ ही बीता, पर बीच में I sensed that there was something extremely wrong going on. Something that was serious enough. I cut one of them off. The second one से मेरी बात automatically reduce हो गई because we were a group of 3. He was always there for me. ऐसा नहीं है कि whenever I needed, he was not there. But automatically बात थोड़ी कम हो गई. Then in the next semester, I met a friend जो मेरे साथ थी back in first semester. It was like nothing was changed, you know. We started, we picked from the place where we had left. I mean, 1 साल तक we were in the same class. We ignored each other. We did not try to have a lot of conversations. हम जानबूझ के बात नहीं कर रहे थे. इसके बावजूद भी इतना बड़ा गैप जो आया 1 साल का, उसके बाद भी nothing changed. और तब से अब तक we have been together. 4 साल हो गए कॉलेज को, and it took me almost 3 years to figure out and filter out the good people and bad people. कई लोगों के कॉलेज ख़त्म हो जाते हैं, पर मुझे उतना टाइम लग गया टू फाइंड आउट, टू गेट टू नो पीपल, टू फिगर आउट कि यार कैसे लोग होते हैं और मेरे पास कैसे लोग मुझे चाहिए. इस पूरी जर्नी में कई मीन लोग आए, कई मतलबी लोग आए, कई टॉक्सिक लोग आए, एंड कई ऐसे लोग आए जिससे मेरी कभी बनी नहीं. पर इन सब के बावजूद वो सब कट होते गए श्री जी की कृपा से. सो या फ्रेंडशिप्स जुड़ेंगी, फ्रेंडशिप्स टूटेंगी. You will get those people who are very mean, who don't care about you, who just there for their benefits, whose value systems don't match with you, who just make fun of you, who bully you. But you are not supposed to get hesitant in filtering out these people. It is extremely important that you are around people in a healthy environment, in a safe environment. You need those kind of people जो आपके goals को समझें, आपकी mentality, आपकी values को respect करें. वो लोग जो चीज़ कर रहे हैं, वो जहाँ जा रहे हैं, उन चीज़ों को अगर आप नहीं करोगे तो you become uncool or you will no more friends. ये वाली चीज़ सिर्फ stupidity है. Real friendships में ये सब नहीं होता है. With that, let's come to the next thing that almost everybody experiences in college. Loneliness. So, I've had a time in college जब मेरी बात जो मेरे फ्रेंड्स थे उनसे बंद हो गई थी और मेरे पास और कोई भी नहीं था जिसको कॉल करके मैं ये बता सकूं कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ, आज मुझे कैसा फील हुआ, आज मुझे इसने क्या बोला, किसी ने क्या कहा. I did not have anybody. ये बात आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते बिकॉज वो टेंशन में आ जाएंगे.
वो अकेलापन जो होता है ना, वो आपको अंदर से खाता है। मतलब आप ये फील करते रहते हो कि यार मैं किससे बात कर लूँ, मैं किसके पास जाऊँ, मुझे किसी से बात करनी है। आप अंदर अकेले रहने में डरते हो, और जब किसी के पास जाते भी हो बात करने, तो वो आपको दिमाग में एक बात घूमती रहती है कि यार इन लोगों के बीच में मैं घुस तो नहीं रही हूँ, ये लोग मुझसे सच में बात करना चाहते हैं कि नहीं, क्या मैं बहुत ज़्यादा चिपकू तो नहीं लग रही हूँ। और ये सारी चीज़ें आपको और दूर करती जाती हैं लोगों से। आई रिमेंबर क्राइंग टू कृष्णा कि यार मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, मतलब मैं आई डोंट हैव पीपल जिससे मैं बात कर सकूँ बैठ के। एंड देन आई रियलाइज दैट माई बिगेस्ट मिस्टेक वॉज टू फॉरगेट दैट ही वॉज ऑलवेज देयर विथ मी. I was searching for other people in college when I had him, and it took me time to come back on track. That loneliness that I used to feel became solace for me, and just with time I started enjoying my company. That feeling of loneliness changed into solitude. And सच में मतलब ये बातें वाली बातें नहीं है, क्यों हम अपने आप के साथ रहना डरावना महसूस करते हैं। अगर हम मतलब हमें एनजाइटी होती है। आई हर्ड माई फ्रेंड्स टॉकिंग कि यार मैं अकेली, तो मुझे एनजाइटी होती है अकेले रहने में, इसलिए मुझे किसी से बात करनी थी, इसलिए मुझे कोई चाहिए था। पर इट्स नॉट अबाउट ठीक है यार, यू कैन नॉट अप्रोच योर फ्रेंड्स, बट इट इज़ अबाउट गिविंग अ थॉट कि क्यों हमें अकेले रहने में, अपने आप के साथ रहने में एनजाइटी फील हो रही है, क्यों हम इतने कमज़ोर हो गए। आई नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पीपल अराउंड यू, बट जब तक आप अपनी खुद की कंपनी एंजॉय नहीं करोगे, आप अपने आप को बेहतर नहीं जानोगे, दूसरे कैसे एंजॉय करेंगे। आप फिर हमेशा, आपको कोई ना कोई चाहिए खुश होने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि लोग होना ख़राब है, लोगों की ज़रूरत नहीं है, बट आपको अपने आप के साथ रहना शुड बी द मोस्ट कंफर्टेबल फीलिंग फॉर यू। और वो ना टाइम के साथ आती है, यू आर अंडर गोइंग दैट फेज, इट इज़ टोटली फाइन। वो ना टाइम लगेगा, ट्रस्ट में। वो जर्नी बहुत, मतलब ये जो जर्नी है ना आपकी लोनलीनेस की, बुरी फीलिंग है, बहुत गंदी फीलिंग है, आई नो, पर बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि दिस वाज द मोस्ट चेरिशेबल टाइम। क्योंकि आप इस टाइम पे जो ग्रो करोगे, जब आप रोते हो ना कि यार काश मैं पहली जैसी थी वैसी हो जाऊँ, नो, ये जो चेंज आ रहा है ये किसी रीज़न से आ रहा है। यू आर चेंजिंग एज अ पर्सन एंड यू डोंट नीड टू रिग्रेट अबाउट थिंग्स दैट हैव हैपेंड प्रीवियसली। जब हमारे पास लोग नहीं होते, हम अकेले फील करते हैं और हमें जैसे तैसे कोई मिलता है, तो हम उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। वी गिव देम एक्स्ट्रा टाइम, वी गिव देम अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, वी ट्रस्ट देम सो मच, एंड दैट इज़ अ बिग मिस्टेक, ट्रस्टिंग पीपल इन कॉलेज। आप अभी पहुँचे हो कॉलेज में एंड यू जस्ट फील इट्स अनदर स्कूल। नहीं, मतलब आप उस तरीके से विश्वास नहीं कर सकते हो लोगों पे जैसे आप स्कूल में कर लेते थे। स्कूल में वही लोग जो स्कूल में साथ थे, वो कॉलेज में आके एकदम बदल जाते हैं, एंड आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरीके के लोग हो सकते हैं। लेट मी टेल यू, दिस इज़ वेरी बैड। और ऐसा नहीं कह रही कि मैं अपने कॉलेज की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी कॉलेज इन इंडिया राइट नाउ एंड मे बी अब्रॉड, आई डोंट नो। पीपल आर गोइंग टू यूज़ यू, पीपल आर गोइंग टू बी देयर फॉर यू, नॉट फॉर यू, फॉर देम, for you to be used by them, ठीक है। हम जितना एफर्ट्स ट्राई करें कुछ लोगों पे डालने का और उनको हम पे विश्वास दिलाने का, टू बी देयर फॉर देम एंड एक्सेट्रा, इट मे नॉट बी रेसिप्रोकेटेड, एंड रियल फ्रेंडशिप्स डोंट नीड सच एफर्ट्स, रियली। अ लॉट ऑफ पीपल, अभी हम अब जैसे आगे बात करेंगे किसी चीज़ के बारे में, यू विल नो कि वाई आई एम सेइंग डोंट ट्रस्ट पीपल. Be it your relationships, be it your friendships, be it any kind of relations in college. Take time and analyze people. Even आप सेमेस्टर उन लोगों के साथ घूम सकते हो और आपको नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली उनकी थिंकिंग क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो कैसे हैं. बिकॉज पीपल आर वेरी गुड इन पोर्ट्रेइंग समथिंग एल्स दैट दे आर नॉट. देन इसी के साथ लगा हुआ पॉइंट है, बीवेयर ऑफ पीपल, एंड आई जेन्युइनली मीन इट. इट इज़ सैड यार, जो अभी कल्चर है, अभी जिस तरीके का माहौल कॉलेजेस में है, इट्स वेरी वेरी बैड. बीवेयर ऑफ गाइज. किसी और को कुछ भी लग सकता है, बट दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद माई फ्रेंड्स इन डिफरेंट कॉलेजेस, इन माई कॉलेज इज वेल. यू कैन नॉट ट्रस्ट boys just like that. I mean,
होंगे कुछ बॉयज़ जो इस वीडियो को देख रहे हैं एंड they'll feel offended, बट इवन यू नो what kind of thinking other guys hold, एंड वो एक दो के कारण सबकी बदनामी होती है. एंड इट्स नॉट दैट कि गर्ल्स नहीं हैं उसमें, हैं, लेकिन मी बीइंग अ गर्ल एंड सीइंग थिंग, मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ. सीनियर गाइज आर सिटिंग like a predator and they just want favors out of you. I mean, there have been things that for getting one extra competition में place, getting good position in something, you just give them favors and you're promoted. I mean, this is so toxic. You're not here for this. It's पता नहीं यार, पता है बोलने के लिए कुछ है नहीं इस चीज़ पे, but this makes you feel very bad, very disgusting. I don't know. I just want you to know that this is what happens. Beware of guys. Beware of people. You will not know आपके पीछे लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं. Even if it's your best friend, you do not know what is happening. और इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रस्ट सबसे शैटर हो जाए. आपको एनालाइज करना, लोगों को जानना है एकदम. बस यही है यार, इसमें ये लगता है ना कि पता नहीं कैसे होगा ये, बट इट जस्ट बीइंग अ रॉ वीडियो, मैं जो है वो बोल रही हूँ. आई जस्ट होप आप उस बात को समझ पा रहे हो कि ये वीडियो का पूरा टोटल एम क्या है. वही आपको बताना कि चीज़ें हैं ऐसी. बीवेयर ऑफ टीचर्स ऑल्सो. You don't know, you just don't know who is thinking what about you and what kind of relation are they expecting out of you. Be it guys, be it girls, be it teachers, be it anybody in college, anybody in the city out there. You're living alone, you're managing things on your own, and you have to hold yourself high. आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको गिरा नहीं देना है आपको, बिकॉज आपको किसी एक चीज़ में आगे बढ़ना है. सी यार, हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत ट्रस्ट करके आगे भेजा है, एंड मेरी थिंकिंग दूसरों की थिंकिंग से बहुत अलग हो सकती है. इट मे सीम आई एम नॉट मॉडर्न, आई डोंट केयर, बट व्हाट आई फील, आई जस्ट वांट टू कन्वे इट टू यू कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको इतना ट्रस्ट करके आगे भेजा है, हम इस चीज़ों में पड़े ही ना जिनसे उनके ट्रस्ट को धक्का लगे. क्योंकि आप खुद सोचो, वो बुरा तो चाहेंगे नहीं आपका, एंड वो उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है. जब वो हमें मना करते हैं कि इनके साथ मत घूमो, उनके साथ मत घूमो, आई डोंट थिंक सो दिस इज़ द राइट पर्सन, तो हमें लगता है यार आपको सब पे शक होता है क्या. बट आई हैव सीन वो चीज़ें टर्न आउट हुई हैं, एंड देन आई हैव लेफ्ट दोज पीपल. तो जस्ट बी वेयर, सी, लुक, डोंट जस्ट ट्रस्ट पीपल लाइक दैट. आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है. And you need to raise your voice. If anything is happening with you that you feel is wrong, beware of girls also. I've seen girls जो लड़कियों के साथ ही अपनी friends को भी motivate करती कि यार it's okay, it's just about one night, right? You'll get this mood, you'll get this competition, you'll get this position, and it's stupidity. It's I don't know, I don't have words for it, but it is. जस्ट बीवेयर. आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. नहीं मिल रहा है, नहीं करेंगे मूड, पर ये इन चीज़ों में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. एंड इट्स अगेन रिपीटिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनी वन पर्टिकुलर कॉलेज, इट्स इन एवरी कॉलेज. अब इसी के साथ एक और पॉइंट आता है, रिलेशनशिप्स इन कॉलेज. आप स्कूल से अभी निकले हो, मे बी यूर इन न्यू सिटी, यू डोंट हैव दैट प्रेशर कि आपको घर इतने बजे तक आना है, किसके साथ घूम रहे हो, क्या है, ये सब पूछने वाला आपके लिए कोई नहीं है. ठीक है, बट मैं आपको सच्ची बात बताऊं, सी आई डोंट बिलीव इन रिलेशनशिप्स एट ऑल, बट कीपिंग दैट सेपरेटली, यू डोंट नो द अदर पर्सन. आप 2-3 महीने क्या 1 साल में भी नहीं जान सकते अगर वो आपके सामने कुछ और ही पेश करना चाह रहा है, करना चाह रही है. तो नेक्स्ट थिंग may sound very disgustful and scary, but it is true about all the colleges in the country, or maybe abroad as well, I don't know. So senior guys are sitting like hunters or predators to get new girls, junior girls, and get favors out of them. Or this is not something very new, it's just that people don't talk about it.
And I just wanted this to be put forward to you because you are entering college, you will be new, and you don't know what people portray in front of you. आपके साथ 4 दिन आपको घुमाएंगे फिराएंगे, अच्छे से बातें करेंगे, they'll make you feel cared, they'll make you feel important, but you really don't know their intentions. I'm not saying that relationships and all don't exist, but you don't know what that people or what that guy or that girl is thinking about you when they're entering into any so-called relationship with you. लोगों की बाहरी केयर पर मत जाओ, क्योंकि आप सालों उनके साथ घूमोगे, पर अगर उनको कुछ और ही छवि अपनी दिखानी है आपके सामने तो वो ही दिखाएंगे, एंड यू विल नेवर गेट टू नो. तो जस्ट डोंट फॉल फॉर दैट केयर एंड ऑल दैट. एक्सप्लॉयटेशन, be it girl or a boy, is very random. Seek time, take time and know that person. सेम बंदा दूसरे बंदी के सामने कुछ और हो रहा है, या सेम केयर और सेम लॉयल्टी उसको दिखा रहा है जो आपको दिखा रहा है, एंड दैट गोज सेम द गर्ल्स एज वेल. तो यू नीड टू टेक टाइम. एंड आई मे बी वेरी ऑर्थोडॉक्स, तो आई जस्ट डोंट थिंक कि you need to waste time on these things, but just in case you do, you should be very sure of the person, and you can never be sure of people. I don't want to contradict things for you, but I just want you to know कि दोनों चीज़ें हैं, आपको वे करनी पड़ेंगी, आपको टाइम देना पड़ेगा अगर आपके पास इतना टाइम है तो. And don't hesitate to raise your voice against the violators. If you feel somebody is violating your body, somebody is violating your dignity, your respect, you raise your voice at the first instance of it, because when it is once, it is going to be the same in the coming times also. You don't know, you will then see कि यार एक बार हो गया था, ठीक है, एक बार और इग्नोर कर दिया, एक बार और इग्नोर कर दिया. that एक बार will never end. You raise your voice right now, and ठीक है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, your parents will shout at you, right? then उसके बाद they will be there with you. So just raise your voice against them. These people need to be called out. People need to know that these things happen. And it is your responsibility to raise your voice. Your parents have had a lot of trust in you that they've sent you here. You're in a new city, you're in a new college. They trust you, and that's why they've sent you here. Don't break that trust. You are not here to engage in these things, in giving people favors to raise your positions or do good in college. You will never be able to do in life with that. So just don't break the trust of your parents. Trust is the most important and most difficult thing to be raised, and once it's broken, it's broken for always. With that, hold tight on your values. बहुत बार ऐसा होता है कि हम कॉलेज में हैं और कॉलेज में हमें नए लोग मिले, वो चीज़ें हमें कूल लगती हैं, जो चीज़ें हम पहले से होल्ड करे आ रहे हैं वो हमें कूल नहीं लगती हैं, हमें बहुत ऑर्थोडॉक्स और स्टूपिड लगने लगती हैं, वो चीज़ें नॉट सो इम्पॉर्टेंट लगने लगती हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू डू नॉट फॉरगेट और डू नॉट लूज द होल्ड ऑफ योर वैल्यू सिस्टम, बिकॉज एट लास्ट दैट इज़ वॉट मेक्स योर पर्सनैलिटी. आई रिमेंबर स्टॉपिंग टू चैंट जब मैं बीच में किसी एक संघ के साथ थी. ओके, संघ मीन्स एक काइंड ऑफ एसोसिएशन जो थी मेरी लोगों के साथ, अ काइंड ऑफ अ ग्रुप, ठीक है. एंड आई स्टॉप चैंटिंग, which was my biggest mistake, but it's kripa that I realized it. And something that is so important to you, something that is so essential of being you, अगर वो कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो you don't really need those people in your life. अगर आप सिर्फ इस चीज़ के कारण अपनी वैल्यूज़ को, अपने डिग्निटी को जाने दे रहे हो, क्योंकि हो सकता है ये मुझे बंदा आगे या बंदी आगे जाके काम आ जाए, इट्स वेरी स्टूपिड ऑफ यू. यू विल नेवर नीड दीज पीपल जो आपकी बेसिक, आपकी समथिंग दैट इज सो इम्पोर्टेंट टू यू की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते. आपको क्यों लगता है अगर वो आपकी इस बीइंग या आपके होने को भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको वो काम आएंगे आगे जाके. होल्ड टाइट टू योर वैल्यू सिस्टम्स. कट दीज पीपल ऑफ जो आपकी वैल्यूज़ को नहीं समझते, आपकी थिंकिंग से उनकी थिंकिंग मैच नहीं होती है, बहुत अच्छी बॉन्ड है आपकी उनके साथ, फिर भी आपको क्यों रहना है ऐसे लोगों के साथ जो इस बहुत ही मेजर चीज़ पे आपसे डिसएग्री करते हैं. डोंट हेजिटेट टू कट पीपल ऑफ. नहीं होंगे कुछ लोग कुछ टाइम के लिए, इट इज़ नॉट अ बिग डील. इंस्टेड ऑफ हैविंग दोज पीपल जो आपका खून चूस रहे हैं.
दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू कन्वे. यही था इस वीडियो का मेन मोटिव कि कई सारी चीज़ें जो बातें नहीं होती हैं, कई सारी चीज़ें पता नहीं ओपनली क्यों डिस्कस नहीं होती हैं. तो आई जस्ट वांटेड कि यार ये चीज़ आपको पता हो बिफोर यू एंटर कॉलेज और वाइल यू आर इन द इनिशियल ईयर ऑफ कॉलेज कि ये सारी चीज़ें होती हैं एंड यू नीड टू बी वेयर. कोई और अलर्ट नहीं होगा, सब तो अपना ही देखने आए ना, सबको जो चाहिए वो करने की कोशिश करेगा. बट यू नीड टू नो वाई यू आर हियर, वॉट यू आर अप टू, एंड you have to be alert with people. I hope this video helped you. In case it did, make sure you comment down whatever you feel, and for more such videos make sure you subscribe to the channel. I'll see you the next Monday. Till then, keep watching. Namaste.